Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crictime Podcast, and we've got Suyesh coming back, joining with us again. And as I mentioned, World Cup से पहले बहुत सारा content आने वाला है, और यही वही content है. We are going to be predicting and guessing our giving our predictions for the upcoming World Cup. Warm-up games शुरू हो चुके हैं. Suyesh, welcome to the podcast. But before we begin, make sure you guys subscribe, make sure you leave a like rating on this, make sure you add it to your playlist and support us for for the upcoming World Cup and the cricketing season. Suyesh, welcome to the podcast. पहली बात तो how is it going? How's cricket life? How's Chelsea life? Chelsea का तो भाई सबको रोने ही आने वाले हैं, अगर मैंने ज़्यादा पूछ लिया, but in terms of cricket कैसा चल रहा है? या थैंक्स फॉर हैविंग मी, प्लेजर टू बी हियर। और काफी एक्साइटेड हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि ये वाला वर्ल्ड कप वुड बी वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव वर्ल्ड कप्स। सो काफी एक्साइटेड हूँ मैं। लीग फॉर्मेट में हो रहा है तो लेट्स सी। आई थिंक हर मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड रियली एक्साइटेड फॉर इट। वार्म अप गेम शुरू हो चुके हैं एंड वी विल जस्ट गेट राइट इनटू इट एज वेल. पहले के 4-5 गेम्स में से 3 तो वॉश आउट हो चुके हैं. इंडिया इंग्लैंड देखने को नहीं मिला. कल के भी 2 मैचेस आई थिंक एक खत्म ही हो चुके थे, बट द ओनली वन दैट काइंड ऑफ वी सॉ वाज द पाकिस्तान न्यूजीलैंड वन. एंड लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट. Pakistan great score on the board, 336 if I'm not wrong, but then they weren't able to defend it. Pakistani bowlers completely lost the kind of cause. Obviously एक दो key bowlers नहीं खेल रहे थे, with Shaheen Shah Afridi being one of them. But at the same time, you don't expect the Pakistani team to not be able to defend 330 on pitches where they should have the upper hand against New Zealand. एग्जैक्टली लाइक very disappointing यार। मतलब the way Pakistan has played in the past past month or so, I mean we were expecting a lot from them, but somehow I don't know, ये लक की बात है कि क्या है, कभी उनकी बैटिंग नहीं चलती है, कभी उनके बॉलर साथ नहीं देते हैं। It's just not clicking for them altogether. I hope they gear up at the right time and perform well. Talking just a bit about New Zealand, पता नहीं जैसे ही वर्ल्ड कप आता है how you know they suddenly start clicking, and suddenly Williamson is back. ACL इंजरी हुई थी 4 महीने पहले and suddenly for the World Cup he's back. Like I don't know कौन सी फिटनेस, कौन सी ट्रेनिंग होती है। वही ट्रेनिंग इंडिया के बुमराह वगैरह को मिल जाए तो शायद हम लोग को और फायदा हो जाए। इफ यू सी फुटबॉल में भी राइट, लाइक हाँ एसीएल इंजरी हाँ. होती है, पूरा पूरा सीजन चला जाता है एंड ही इज बैक इन 4 months। Yeah, exactly. I know he's missing out I think the first game against England, but other than that, he's pretty much fit. Kal batting भी काफी अच्छी करी for a long stint, and then obviously second warm up maybe he said that he'll be fielding and bowling. Obviously he won't bowl, but he will be fielding, so it is good signs. And New Zealand वही होता है ना, dark horses of cricket. 4 साल कोई इतना appreciation मिलता नहीं उनको. They just go about playing their own game. होम सीरीज हो, अवे सीरीज हो, जो भी हो, यू काइंड ऑफ सी देम बैकग्राउंड में, न्यूजीलैंड के करते हैं, बट आप इतनी अटेंशन नहीं देते उनको. फिर जैसे वर्ल्ड कप आता है, यू सडनली रियलाइज कि यार ये कहाँ से हुआ. ऑब्वियसली एक दो प्लेयर्स हैं उनके जो मिसिंग है. टिम साउदी बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट वंस, वो एक बहुत बड़ा हिट होने वाला है. काफी एक्सपीरियंस इन इंडियन कंडीशंस एज वेल. बहुत सारी बायलैटरल सीरीज खेली है टिम साउदी ने, एंड he'll be someone New Zealand would have wanted this ahead of this World Cup alongside Kane Williamson. So that's going to be a big one to watch out for as well. बाकी सारे वार्म अप गेम्स, ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग क्वाइट वेल अगेंस्ट नेदरलैंड्स. 23 ओवर्स का वो मैच है. इंडिया का आई वुड हैव होप टू सी टुडे, टू सी के यार होता क्या, एटलीस्ट एक लाइनअप आती तो देखने को मिलता कि इंडिया अपने सारे प्लेयर्स टेस्ट आउट करना चाह रहे हैं या नहीं. बट द बिगेस्ट चेंज फॉर इंडिया इज अक्षर पटेल बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड, बीइंग इंजर्ड, एंड रविचंद्रन अश्विन कमिंग इन. मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि भाई ये तो होने वाला है, और ये हो ही गया. और मैं बड़ा सरप्राइज था जब पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ. मैंने कहा यार अश्विन को नहीं रखा है इन्होंने. इतना एक्सपीरियंस प्लेयर जो इंडिया में इतने मैचेस खेल चुका है, चाहे वो टेस्ट मैचेस ही ना हो, बट इतना उसने खेला है. सो एनीवेज, नाउ द इंडियन टीम हैज टू काइंड ऑफ players who've already won the World Cup and they might win it for the second time. Your thoughts on Ashwin coming in and joining the Indian team? ब्रो अभी से 2 महीने पहले मैं सार्केस्टिकली बोल रहा था यार कि वर्ल्ड कप आ रहा है एंड अश्विन समहाउ टीम में आएगा ही आएगा, एंड आई वाज लिटरली वेरी सार्केस्टिक। मुझे पता था नहीं आएगा इस बार, बट समहाउ एक हफ्ते पहले अक्षर पटेल गेट्स इंजर्ड एंड लाइक दे रियलाइज। तो सबसे पहले तो यार मतलब चहल शुड हैव प्लेड राइट। लाइक सबसे पहले उन्होंने चहल को ड्रॉप कर दिया हाँ, that बिकॉज I ऑफ हिज agree. बैटिंग, एंड Hmm. देन दे ब्रॉट इन अक्षर पटेल, बट देन अ वीक अगो दे सडनली रियलाइज कि भाई नहीं यार, अक्षर इज जस्ट लाइक फॉर जडेजा, बट लाइक जडेजा इज सुपर फिट, उसके इंजरी होने के चांसेस क्या ही है। सो दे लाइक अश्विन इज अ ग्रेट ऑलराउंडर, ग्रेट वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस। आई थिंक विराट कोहली के अलावा ही इज द ओनली वन हु वाज देयर इन Hmm. 2011 वर्ल्ड कप।
सो बहुत 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 इट्स अ ग्रेट एडिशन, मतलब बैटिंग में भी ही कैन टर्न द मैच अराउंड, सो एंड स्पिनिंग ट्रैक में तो ही विल बी रेकलेस, एंड फर्स्ट गेम इज एट हिज होम ग्राउंड ओनली, सो मजा हम्म। आएगा। ग्रेट एडिशन। एग्जैक्टली मुझे मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया कहीं ऑलराउंडर के चक्कर में एक की बॉलर तो नहीं मिस कर रहे, कि दे वांट एवरीवन टू बी एबल टू बैट नंबर 8 9 पोजीशन तक उनको चाहिए कोई जो बैटिंग कर सके, जो उनके हेल्प कर सके। बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको अपने टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पे इतना रिलाई करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर बॉलर्स चाहिए होंगे। एट वन पॉइंट यू कांट से कि ठीक है हम विल पिक शार्दुल ठाकुर ओवर बुमराह जस्ट बिकॉज उसकी बैटिंग भी अच्छी है, वो थोड़े ओवर्स बैटिंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अश्विन का वापस आना मेक सेंस, और मुझे पहले ही उससे लग रहा था, एंड ऑब्वियसली चाहल एज वेल, ही डिजर्व्स अ चांस एज वेल, उसको भी पता नहीं क्यों नहीं लिया। आईपीएल में इज द हाईएस्ट विकेट टेकर, और कौन आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर अ रीजन है, एंड दैट मींस ही डन इट ऑल ओवर इंडिया, एंड इट्स नॉट जस्ट इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स और ये और वो। एंड ऑब्वियसली एक दो सीजन हैं जो बाहर खेलेगा इंडिया के, बट एट द सेम टाइम चाहल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। बट इफ एनी वन एल्स अदर देन चाहल, मुझे अश्विन लगता था कि मिलेगा। अक्षर पटेल का मैंने इतना कोई आईपीएल में नाम नहीं सुना, मैंने इन जनरल इतना ओडीआई क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में इतना नाम नहीं सुना हुआ इन टर्म्स ऑफ, ठीक है वो वेस्ट इंडीज सीरीज बहुत अच्छी गई उसके लिए, एंड इट्स नाइस टू सी हिम प्ले वेल, बट वो इंडियन कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट टू एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड जहां तक मुझे पता है। एंड इवन इफ बी आईसीसी ट्राइज टू मेक बैलेंस ट्रैक्स और ये एंड वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि भाई इंडियन स्पिनर्स विल परफॉर्म बेटर देन द रेस्ट ऑफ द स्पिनर्स, या बेटर देन द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स। तो yeah, glad to see him back, and it will be interesting. क्या पता यार अश्विन और कोहली दोनों सेकंड वर्ल्ड कप जीत जाएं, what a great farewell it will be for both of them if that actually does happen. And वो वही कहते हैं ना कि भाई रोहित शर्मा को वो चांस नहीं मिली थी 2011 में, बट इट्स फाइनली टाइम फॉर हिम टू काइंड ऑफ स्टेप अप एंड डू इट, एंड इंडिया की भाई ज्यादा बुराई कर भी नहीं सकते अदर देन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ओवर हियर। द वे रोहित शर्मा उसमें वाले गेम में भी खेले थे लास्ट ओडीआई जो जिसमें ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, बट रोहित शर्मा प्लेड रियली वेल, विराट थोड़ा कोहली सा प्लेड यार रियली वेल एज वेल। लोअर मिडिल ऑर्डर मुझे थोड़ा सा हम्म। कंसर्न तब लग रहा है जब पांड्या, अगर देखो पांड्या सारे मैच खेलता है देन वी हम्म। हैव अ ग्रेट लोअर हम्म। मिडिल ऑर्डर, बट जो हमने लास्ट मैच में देखा, आई थिंक हम लोग 220 for 3 थे एंड देन वी काइंड ऑफ कोलैप्स्ड। तो वही है, मतलब स्काई इज नॉट वेरी रिलायबल। हाँ मतलब 50-50 रहता है उसका, किसी मैच में चल जाएगा, किसी में नहीं चलेगा। तो इट्स वेरी क्रिटिकल कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस बनी रहे एंड ही प्लेज ऑल द क्रूशियल मैचेस। अगर वो बना रहता है तो आई डोंट सी एनी फ्लॉ इन द इंडियन टीम राइट नाउ विद द एडिशन ऑफ अश्विन, लाइक इट हैज बिकम ओनली स्ट्रॉन्गर, सो वही आई स्ट्रॉन्ग मीन सूर्या ने कंटेंडर। पहले दो गेम्स में इतना अच्छा खेला था, वेयर वी गॉट टू सी बोथ साइड ऑफ द कॉइन, कि भाई पहले गेम में उसको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह इनिंग्स खेलनी पड़ी, स्लो इट डाउन 100 के स्ट्राइक रेट से, और फिर सेकंड ओडीआई में आई रिमेंबर 130 की स्ट्राइक रेट में, एंड ही जस्ट वेंट berserk टुवर्ड्स द एंड, जो कि एग्जैक्टली व्हाट इंडिया नीडेड टू मेक श्योर कि एक टारगेट टफ टारगेट सेट हो। और वही से थर्ड मैच में वो नहीं कर पाया, थर्ड मैच में व्हेन काइंड ऑफ ही नीडेड टू गो बैक टू हिज स्लो इनिंग्स, वो नहीं कर पाया, एक रैश शॉट खेली उस पे आउट हो गए, and that kind of just happens, but at the same time I would back him, उसका रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं एशिया कप में, इतना नहीं देखने को मिला, बट एट द सेम टाइम ठीक है, होता है हर गेम में, नहीं जरूरी नहीं है कि वो कर सके, एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि आई कंप्लीटली एग्री विद यू। इंडिया टीम में अगर कोई एक एक कंसर्न है बस वही है थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर जो हार्दिक एंड सूर्या के बीच में, बड़ा देन दैट इंडिया's गॉट द परफेक्ट काइंड ऑफ वो लग रही है जो 2011 की वॉरियर स्क्वाड थी वैसी जैसी स्क्वाड लग रही है ये भी, maybe not as in terms of the big names जो 2011 में थे, but in terms of the form and the on paper जो एक लाइनअप बन रही है वो जबरदस्त बन रही है for India, and I think अनदर स्लाइट कंसर्न अकॉर्डिंग टू मी इज जडेजा की बैटिंग। ही हैज काइंड ऑफ पिछले साल में नॉट बीन वेरी गुड, जैसा वो 2019 या 2018 में करता था कि एक क्विक 50 या क्विक 60 वेरी इंपैक्टफुल इनिंग खेल जाता था। विद द बॉल ही हैज बीन एक्सीलेंट एज यूजुअल, बट एंड ऑफ कोर्स फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, बट अगर उसकी बैटिंग भी थोड़ी क्लिक कर जाए देन आई थिंक वी आर डेफिनेटली लाइक कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कप, लाइक टॉप कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कप दिस टाइम। well, yeah, I think with Jadeja, it's like I usually just keep him in the team because of his fielding. पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है जो आई थिंक कोई इंडियन फील्डर अभी तक अचीव नहीं कर पाया, द वे मे बी कोहली क्लोज बाय है थोड़ा इससे, बट जडेजा की जो फील्डिंग है ना, ही सेव्स यू दैट 10-15 रन्स आपको पर इनिंग्स, और बॉलिंग तो ऑब्वियसली उसकी उसकी जबरदस्त है ही, चेन्नई के लिए उन्होंने देखा है उसने क्या क्या नहीं किया हुआ है। तो फॉर मी अगर वो दोनों बॉक्सेस टिक होते ना, तो मैं बैटिंग को थोड़ा एक वो बैक हैंड में रख के कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, इफ ही इज जस्ट स्कोरिंग दैट 10-15 रन्स टुवर्ड्स द एंड, ये कभी कभार एक खराब परफॉर्मेंस है, मैं उसको ज्यादा फिर वो आई वोंट गो इनटू टू मच ऑफ दैट, दैट्स माय पर्सनल काइंड ऑफ थॉट के यार ठीक है, इफ ही नहीं इज परफॉर्मिंग डेफिनेटली, वेल विद द बॉल, हाँ। नॉट नॉट फ्रॉम हिज प्लेस इन द हम्म। टीम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब
place in the team is confirmed. But for the Indian team, जो number 7 batter है उसकी batting impactful होना is very important for India to win. Definitely उसकी spot तो मतलब fix है. If he doesn't play, it will be a huge loss for India. But batting में number 7 पे someone has to be that strong link कि भाई अगर हमारा top order कोलैप्स कर गया तो या कुछ लास्ट में एक्सेलरेट करने की जरूरत है तो यू कैन गेट दोस 40-50 क्विक रन्स. No, yeah, that part I agree with, because you need to rely on that lower middle order for that. For that to happen. But yeah, World Cup में ज़्यादा दिन बचे नहीं है. Excitement is through the roof. Tickets are sold out. Indians are ready. Indian fans and in everyone were going to the stadiums as well. बस भाई बारिश मत होए. ये जो वार्म अप गेम्स हैं इसको तुम लोग झेल लेंगे. कर लो बारिश में जितनी करनी है, बट उसके बाद अगर बारिश हुई और वो भी अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड पहले गेम में हो गई तो भाई मैं तो लैपटॉप पटक दूंगा अपना. बिकॉज मैं तंग आ चुका हूँ. एशिया कप में मैंने शायद बारिश ज्यादा देखी है, क्रिकेट कम देखा है. फाइनल में भी सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग करा दी कि उसमें भी क्रिकेट देखने को नहीं मिला. आधे घंटे में गेम खत्म कर दिया. पूरे दिन मैं ऐसे दीवार को देखा तो मैंने कहा भाई क्या करूँ अब मैं. बट या, इट इज व्हाट इट इज. लेट्स सी, लेट्स होप के यार अच्छा जाए वर्ल्ड कप. एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द प्रेडिक्शंस. और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज मैंने आज तक बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी हैं. और जब मैं 1 month या 2 months डाउन द लाइन, जब वो सीरीज खत्म होती है, वो टूर्नामेंट खत्म होता है, एंड यू लुक एट योर प्रेडिक्शन स्पेशली फॉर लाइक फुटबॉल, मैं कहता हूँ मैंने कहा ये मैंने कब प्रिडिक्ट किया और मैंने क्यों किया, मैंने क्या सोच के किया. तो वही वाला मोमेंट अब होने वाला है बहुत बार. पहले तो शुरुआत करते हैं भाई टॉप 4 से. स्ट्रॉन्ग टीम्स तो काफ़ी हैं. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मे बी इवन अफगानिस्तान. स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं. तो एक बहुत टफ कॉल होने वाली कि भाई टॉप 4 कौन होगा. तो I'll let you start with it and then I'll follow what you say and आई to थिंक save myself. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यू हैव हाँ, आस्क्ड अभी तक जितने भी हमने पॉडकास्ट या लाइव्स किए हैं. yeah. एंड ऑनेस्टली जितने वर्ल्ड कप मैंने देखे, आई थिंक मैंने कब से 1999 तो नहीं, 2003 से वर्ल्ड कप्स देख रहा हूँ मैं. दिस विल बी द मोस्ट कम्पिटिटिव वर्ल्ड कप. आई थिंक कोई भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं आप. बट इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट टॉप 4, सो अभी से अगर आप एक महीने पहले एशिया कप से मुझे पूछते, आई वुड डेफिनेटली पुट पाकिस्तान इन दैट. बट नाउ आई वुड नॉट बी पुटिंग पाकिस्तान इन दैट. सॉरी पाकिस्तान फैंस इफ यू वॉच दिस चैनल, बट आई डोंट थिंक यू आर डिजर्विंग टॉप 4 राइट नाउ अनलेस यू टर्न इट अराउंड. इंडिया फॉर श्योर. इंडिया इज डेफिनेटली वन. इंग्लैंड फॉर श्योर. अब जो बचे हुए दो स्पॉट हैं, आई वुड से, so कौन कौन है basically. First, let me eliminate the teams. So Bangladesh won't be there, although I think they will kind of uh, cause a few upsets, but like Sri Lanka को अभी हराया उन्होंने कल, and Netherlands also they might cause a few upsets, but definitely not going to मुझे बहुत be बहुत top 6 or स्ट्रांग 7. फीलिंग आ रही है कि नेदरलैंड से पाकिस्तान जरूर हारने वाला है और फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से जीतेगा. ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये होने वाला है. तो फिर तो मतलब बर्बाद कर देंगे बिल्कुल. फिर तो मजा आ जाएगा. ऐसा हो गया तो मतलब इट विल बी extremely competitive. हाँ, So uh, I would say like Netherlands, Bangladesh surely out. Sri Lanka might be, but मेरे prediction में नहीं होगा. Sri Lanka will also be out. Uh, so Pakistan I am not putting. So चार टीम तो यही चली गई. I am left with अफगानिस्तान, South Africa, साउथ अफ्रीका. Afghanistan, New Zealand, and Australia. So Afghanistan again, I think fifth या sixth at max वो जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते. So South Africa, Australia, and New Zealand. इन तीनों में से कोई दो होगा. And I think it will be Australia and New Zealand. Although it sounds as if I'm playing safe and I'm writing off South Africa, but seeing कि वो जैसे चोक कर जाते हैं, प्राइम गेम्स. अभी T20 वर्ल्ड कप ही देख लो यार. मतलब दे वर टॉपिंग द ग्रुप एंड सडनली उनके फैंस सुबह सो के भी नहीं उठे थे, एंड दे द फर्स्ट न्यूज दैट दे गॉट दैट वाज दैट दे हैव लॉस्ट टू नेदरलैंड एंड दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. सो ऐसी गलतियां वो करते हैं. सो आई एम काइंड ऑफ सेइंग कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. Honestly, good choice. I think थोड़ा safe, yeah, as you mentioned, थोड़ा safe sound करता है. But realistically देखा जाए तो यही चार टीमें. If you मेरे में बस एक difference होगा. I think न्यूजीलैंड की जगह पाकिस्तान. I think they'll grow into this tournament. And
ऑब्वियसली बायस तो नहीं हूँ मैं क्योंकि मैं इंडियन फैन हूँ, बट मुझे देखना है पाकिस्तान को सेमीफाइनल फाइनल खेलते हुए, वो एक इंटरेस्टिंग गेम बनाते हुए। न्यूजीलैंड का बस मेरे साथ यही है कि बस उनकी बॉलिंग, उनकी ऑलराउंड टीम एक एक बहुत ही बैलेंस टीम है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक कोई स्टार प्लेयर मुझे दिखता नहीं है। मैं आई डोंट एक्सपेक्ट केन विलियमसन टू स्टेप अप एवरी टाइम। तो हर गेम में वो 50-70 वाली इनिंग्स जो ओडीआई में चाहिए होती है आपको एक प्लेयर दो प्लेयर से, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे करना। और इवन इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट डेविन कॉनवॉय एज वेल, वो भी इतना नहीं कर पाएगा। और टिम साउथी के इंजरी भी एक काफी एक बड़ा एक हिट है उनके लिए। तो और इंडियन पिचेस में स्पिनर्स काफी काम करते हैं, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे। नो 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 डिसरिस्पेक्ट टू इश सोडी या who's the other guy from New Zealand, I can't remember the name. रचिन रविंद्र। रविंद्र एज वेल, फिर एक और भी तो था अब उनके पास वो कल ही वाज ओपनिंग एज वेल, तो हाँ। अच्छी बैटिंग करी ओपनिंग में उसने। आई थिंक जनरली न्यूजीलैंड का टैलेंट है बहुत, बट पाकिस्तान मुझे लगता है कि पहुंच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया तो यार ये तीन तो गिवन है। इंग्लैंड भी मुझे एक्चुअली अगर मुझे थोड़ा एक स्पिन ऑफ करना होता ना, तो मैं कहता भाई पाकिस्तान या तो इंग्लैंड की स्पॉट लेगा या तो न्यूजीलैंड की लेगा। इंग्लैंड की बैटिंग बहुत जबरदस्त है। आई थिंक अगर किसी की बैटिंग देखनी है तो वो इंग्लैंड की देखो। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर सब जबरदस्त है। स्टार्टिंग में जॉनी बेयरस्टो, फिल सॉल्ट भी है, और हैरी ब्रुक्स वापस आ गया, बेन स्टोक्स है उनके पास, जॉस बटलर है। तो बिग हिटर्स की तो कमी है नहीं। एक आउट होगा दूसरा बिग हिटर आ जाता है, तीसरा आ जाता है। ऑलराउंडर्स भी बहुत जबरदस्त है उनके पास। तो फॉर इंग्लैंड इट्स नॉट देयर बैटिंग या इट्स नॉट देयर फील्डिंग विच इज एन इशू, इट्स द बॉलिंग। उनके पास कोई एक मार्की बॉलर नहीं है जो आई थिंक इंडिया के पास है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। वो उस पे एक लैकिंग हो सकती है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान हो सकता है, दे माइट बी एबल टू टेक हैव एन एज ओवर अ टीम लाइक न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। कोई एक मार्की बॉलर नहीं है टू से कि भाई दिस इज माय बॉलर, ही विल लीड माय बॉलिंग लाइनअप। जैसे बुमराह ओपनिंग करता है ना बॉलिंग में, शामी के साथ या सिराज के साथ, यू नो दीज टू विल सेट द पेस। एक बार इन्होंने बॉलिंग जबरदस्त करा दी पहले 5 6 10 ओवर, फिर उसके बाद वो स्पिनर्स कैरी ऑन कर जाते हैं, ये बाकी रेस्ट ऑफ द बॉलर्स। तो वो मुझे एक लगता है एक काइंड ऑफ दैट व्हिच इज व्हाई आई वुड से कि हाँ, इंडिया तो है मेरे लिए, ऑस्ट्रेलिया भी है मेरे लिए। वो तो ऑस्ट्रेलिया को पता ही है भाई, उनको तो कभी रूल आउट नहीं कर सकते। वो अगर वो सी टीम में भेजेंगे, मैं कहूँगा वो भी जा सकती है टीम। वो राइट। एक माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि भाई 90 से एक वो एक काइंड ऑफ एक वो रिवाज चलती आई कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो है, चार टॉप फोर नहीं डिसाइड करने, टॉप थ्री डिसाइड करने काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ऑस्ट्रेलिया तो है उसमें। अब वही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में से मेरे लिए वही दो आएंगे। पाकिस्तान मुझे लगता है 2 3 अपसेट्स कर सकते हैं, और मैं उनको रूल आउट नहीं करूंगा भाई, क्योंकि ठीक है बहुत सारी काफी लास्ट 2 3 गेम्स में थोड़ी बहुत इश्यूज आए हैं जो क्रैक्स दिखे हैं पाकिस्तान के, बट एट द सेम टाइम बाबर आजम फॉर्म में है। और रिजवान ने लास्ट एशिया कप गेम में भी अच्छा खेला था, और फिर कल वार्म अप गेम में भी अच्छा खेला। इट्स जस्ट द पाकिस्तान की बॉलिंग अगेन, मैंने बाहर बहुत 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 बार बोला है कि भाई जब उनको विकेट्स नहीं मिलते वो थोड़ा स्ट्रगल करने लगते हैं। वो उनको लगता है कि हाँ हम लोग बहुत गलत जा रहे हैं, और फिर वो और गलत जाते रहते हैं। तो बस वही है कि उनको बस प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा, कि कैसे अगर एक ओवर में 6 रन चले गए, कैसे हम लोग को नेक्स्ट ओवर में एक मेडन चाहिए या 2 3 रन चाहिए जिससे हम लोग बैलेंस कर सके। और वही है कि बस वो बॉलर के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। तो नाइस टू सी हसन अली कम बैक, लेट्स सी अगर वो कुछ कर पाता है। शाहीन शाह भी आ जाएगा वापस हारिस रऊफ के साथ, तो एक पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो बड़ी जबरदस्त लगी मुझे तो फिर। पाकिस्तान में ना मुझे एक फंडामेंटल इशू लगता है जिस वजह से मैंने उनको अपने टॉप फोर में नहीं रखा है, वो है यार कि देखो इंडिया की जो कंडीशंस हैं दे विल बी प्योरली बैटिंग कंडीशंस एंड स्पिनिंग कंडीशंस है ना, तो उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं। एंड तो बॉलिंग उनकी थोड़ी सी वहां पे दिक्कत कर जाएगी, जो कि हमने कल भी देखा एक्सपोज हुई। और सबसे बड़ी चीज जो उनकी प्रॉब्लम है ना, उनके बैट्समैन रन तो बनाते हैं, एवरेज बहुत अच्छा है, बट उनका स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं होता। जैसे हम्म। कल वाला जो विकेट उन्होंने 340 मारा, वेरी गुड, बट वो 340 वाला विकेट था, न्यूजीलैंड ने बताया नहीं वो 340 वाला विकेट नहीं था, वो 400 वाला विकेट था। हम्म। तो उनका एक सर्टेन कैपिंग है स्ट्राइक रेट का बैट्समैन के, वो उससे ज्यादा रन बना ही नहीं सकते हैं, मतलब दे कांट स्कोर 400 रन्स। हम्म। मैं स्ट्रीम पे अभी बोल रहा हूँ, दे विल नॉट बी एबल टू स्कोर 400 रन्स इन एनी गेम। तो हाँ वो तो मैं बहुत एग्री करता इंपॉर्टेंट हूँ। है कि उनकी बॉलिंग क्लिक करे। और वहीं पे इंग्लैंड को एज यहाँ मिलता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इंडियन कंडीशंस में इंग्लैंड की बॉलिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट अमंग ऑल द 10 टीम्स। बट उनकी जो बैटिंग है, अगर मतलब चलो यहाँ तो 10 टीम्स खेल रही हैं, काफी कॉम्पिटेटिव टीम्स, अगर ये हम्म। 16 टीम का वर्ल्ड कप होता है जिसमें कुछ एसोसिएट नेशंस होते, तो मैं तो कहता भाई इंग्लैंड माइट इवन स्कोर 500 इन सम गेम, बट श्योरली 400 तो इंग्लैंड मारेगा। तो हम्म। इंग्लैंड की बैटिंग इतना बढ़िया कंपेंसेट कर जाएगी ना, आई विल वे इंग्लैंड ओवर पाकिस्तान। एंड न्यूजीलैंड आई से बिकॉज मैं एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ भाई, 2003 के हम्म। बाद से कभी वो सेमीफाइनल से नीचे तो गए नहीं है, तो एंड अगेन दे आर क्लिकिंग। सो
पाकिस्तान को ही मैं हटा रहा हूँ, बट एज यू आर टोटली राइट, पाकिस्तान इज अ वेरी बिग एक्स फैक्टर। क्या पता इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को ही, मतलब इंडिया को नहीं बट इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को ही थोड़ा 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 ज्यादा हो गया शायद। नहीं बट वही है ना, पाकिस्तान का ऐसा ऑन द डे वो भाई किसी को भी हरा सकते हैं। अगर हम लोग एक हाँ सुपर टीम बना के पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दें, वो भी हरा देंगे। फिर अगले दिन वही टीम पाकिस्तान वाली 25 पे ऑल आउट भी हो सकती है। वही है पाकिस्तान का, कोई भरोसा नहीं कहाँ पे कहाँ हो सकता है। और वही बात जैसे जैसे बोली ना कि वो उनके पास कोई स्ट्राइक रेट की इश्यू है। उनके पास कोई एक लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई एक बिग हिटर का नाम का है ही नहीं कोई, जो हाँ आके अगर आपके टॉप 4 बैट्समैन 100 की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, फिर आपको एक होता है कि एंड में आपको एक चाहिए जैसे सूर्या जैसा या हार्दिक जैसा, जो आके भाई 150 130 स्ट्राइक रेट से आके दोनों एंड से जब वो लास्ट 10 ओवर्स में अनदर 75 80 रन मिल जाए, वो एक बोनस जो रन होते हैं, वो हाँ पाकिस्तान उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाता। मिडिल ऑर्डर उनका बहुत जबरदस्त है, रिजवान के साथ बाबर आजम भी अब ओपनिंग से नीचे आ गया एक एक नंबर। तो समवेयर जो राइट इन सेइंग कि भाई उनको जो चीज़ देखनी है वो उस पे कंसंट्रेट करना है कि भाई कुछ ऐसे आपको बैट्समैन चाहिए जो इफ्तिखार अहमद है या शादाब खान है, इफ्तिकार, इनको हाँ थोड़ी अपनी एक अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई वी आर गोना हैव टू गो 150 130 स्ट्राइक रेट, वी कांट अफोर्ड टू से 90 50। मैं नहीं कहता कि पहले बॉल से आके मारो, बट पहले 10 बॉल 15 बॉल समझ के फिर आप कर लो जो करना है उसके बाद। क्योंकि हम्म, वही है, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पिचेस एज यू मेंशन बैटिंग तो बहुत अच्छी होने वाली, या तो इट भी या तो कंप्लीटली स्पिनर्स गेम के स्पिनर आके भाई 100 200 में पूरा निपटा देंगे गेम, या तो भाई पूरा बैटिंग गेम होगा जहाँ पे ड्यू इतनी हो जाएगी और बॉल इतनी खराब हो जाएगी कि भाई 400 बनेंगे। तो इट विल बी टू ऑपोजिट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, बट इन द सेम टाइम वो एक बहुत कंपेटिटिव मैच हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों के लिए अच्छा हो जाएगा करना वही चीज़। राइट। एनीवेज, विनर जो है वो उसको एंड के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मेरी लिस्ट में एंड में लिखा हुआ है और वो सब सब उसी के लिए इंटरेस्टेड होंगे भाई कौन जीते। ऑब्वियसली थोड़ा एक बायस होगा, बट मैं मेरे पास दो विनर्स हैं और दूसरा वाला शायद मेरे सबके लिए शॉकिंग होगा। बट बेस्ट बैटिंग, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट ऑलराउंडर, भाई आई थिंक 2011 में इंडिया में तो युवराज सिंह था। उसने जो फील्डिंग कर लो जो ले लो उसकी, उसने जो जबरदस्त खेला था। तो उसी मेल का कोई प्लेयर अगर मुझे दिखता है कहीं पे, तो मैं बैटिंग से शुरुआत करूंगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो मुझे विराट कोहली को देखना है। मुझे 2 या 3 सेंचुरीज चाहिए, मुझे सचिन का रिकॉर्ड तोड़वाना है उससे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे उससे। वर्ल्ड कप जीते ना जीते वो देख लेंगे, मुझे उसका सचिन का वर्ल्ड कौन वो सा चाहिए। टोटल 100 सेंचुरी इन सचिन? इन इन ओवरऑल क्रिकेट। तो उसके पास काफी टाइम है करने के लिए, पर मुझे लगता है बैटिंग में यार विराट कोहली कर सकता है कुछ। इंडियन कंडीशन में वो बहुत जबरदस्त खेलता है ओडीआई क्रिकेट। इसके लिए परफेक्ट काइंड ऑफ एक वो है, जो जो उसकी वीकनेस है, वो जो आउटसाइड ऑफ बॉल जो लेफ्ट हैंड पेसर की आती है, वो एक निगेट हो जाती है इंडियन पिचेस में टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और आईपीएल में भी दिखता है कि भाई वो इतना अच्छा खेल रहा था लास्ट फ्यू आईपीएल्स। तो मेरे हिसाब से यार विराट कोहली मेरा बैटिंग मुझे चाहिए तो विराट कोहली है, बट अगर मुझे 2 3 नाम लेने हुए तो रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में इंडिया की तरफ से। स्टीव स्मिथ बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पता है उसको कैसे खेलना। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बहुत एक्सप्लोसिव भी होते हैं, तो they'll ऑलवेज बी इन कंटेंशन। अगर पाकिस्तानी फैंस देख रहे हो तो भाई बाबर आजम मेरी लिस्ट में तो नहीं होगा भाई बैटिंग के हिसाब से। मुझे लगता है कि भाई ठीक है, मे बी अगेंस्ट नेदरलैंड्स बांग्लादेश थोड़ी वीक टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा स्कोर कर लेगा, बट मुझे लगता है ही स्टिल स्ट्रगल अगेंस्ट बिग टीम्स इन दीज काइंड ऑफ पिचेस। सो फॉर मी आई थिंक इफ आई हैड टू पिक टॉप 3 आई वुड से रोहित शर्मा, विराट कोहली, या मे बी वन ऑफ वार्नर या स्टीव स्मिथ मेरे लिए, या वन ऑफ द इंग्लैंड बैटिंग मे बी हैरी ब्रुक्स या बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स तो ऑलराउंडर है, बट नॉट रूट। रूट का रिकॉर्ड इंडिया में इतना अच्छा नहीं है, और ओडीआईज में मैंने उसको इतना जैसे, आई नो ऑब्वियसली इंग्लैंड रियली लव हिम इन द मिडिल ऑर्डर, मैंने उसको इतना नोटिस नहीं किया अभी तक। हो सकता है मैं अग्रीड। कंप्लीट, बट मुझे इंडिया में उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा लगता नहीं, और वो आईपीएल भी बटलर, इतना रेगुलरली खेलता बटलर नहीं है का तो बहुत इतना अच्छा है एक्सपीरियंस। इंडिया में रिकॉर्ड। हाँ, बटलर कुड बी वन एज वेल, यू राइट। माय पिक इमेजिन वुड करो बी केएल हो शुभमन जाए, गिल। एंड में अगर मुझे केएल हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं तो अपना चैनल ही डिलीट करूंगा, मैं तो भाई कहूंगा चलो भाई हो गया मेरा। भाई चैनल डिलीट कर दोगे, लेकिन इंडिया के लिए तो अच्छा ही है अगर नंबर 5 हाँ तो बैटर आके हाँ। हाईएस्ट रन गेटर बन जाए। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है ये गिल का वर्ल्ड कप है। मुझे लग रहा है कि हम्म, गिल इसमें 600 700 रन बनाएगा 9 मैचों में, एंड सेमीफाइनल फाइनल आई डोंट नो, बट आई थिंक गिल एंड कोहली तो मतलब अगेन मतलब पैराडाइस है उसके लिए। ये तो 9 मैच मतलब रखा हुआ है, एंड अभी तो उसका जो पनौती लगी थी वो भी जा चुकी है। तो हम्म, आई थिंक कोहली इज अनदर, वाज अ ग्रेट शाउट। बट
purely thinking from current form point of view, I think Gill might outscore Kohli this. And मैं तो चाहता हूँ दोनों compete करें for the रोहित शर्मा का यार मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं ऑफ लेट ही हैज yes 2019 वर्ल्ड कप में स्कोर 5 centuries बट अभी वो सेंचुरी नहीं मार पाता यार हम्म ही स्कोर्स क्विक 60 70 एंड गेट्स आउट तो आई डोंट नो वेदर ही विल बी द टॉप स्कोरर बट श्योरली आई थिंक गिल एंड कोहली आर वेरी क्रिटिकल एंड अगर मेरा ये प्रेडिक्शन गलत हुआ तो इंडिया का मतलब पता नहीं क्या होगा यार मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू तो क्लिक एंड देन टॉकिंग अबाउट अदर टीम्स तो पता नहीं विलियमसन आई वुड हैव सेड बट अभी वो कितने मैच खेलेगा आई डोंट नो स्टीव स्मिथ फॉर श्योर डेविड वार्नर बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहा है सडनली इज क्लिक्ड तो इंडिया वाली सीरीज में ही वाज वेरी गुड आई वुड गो फॉर बटलर आई थिंक बटलर बहुत सही बाबर आजम एंड रिजवान जोड़ी में दे विल गेट सम 100 पार्टनरशिप्स a lot of them but I agree with you top scorer में they might not be there in top 3 so yeah I mean टॉप स्कोरर की मैं अगर बात करूं तो आई विल गो फॉर शुभमन गिल और विराट कोहली हम्म मैं मुझे जब गिल बोला तो मैंने कहा यार मुझे गिल कैसे भूल गया मैं क्योंकि मुझे रियलाइज ही मुझे पता है आज भी लगता है जैसे केएल राहुल ओपन करता है इंडिया के लिए कहीं ना कहीं तो या गिल गिल का जो यही ऑब्वियसली उसने सारे अपने रूमर्स जो है कि भाई अहमदाबाद में सिर्फ खेलता है या एक दो स्टेडियम में खेल पाता है वो सारे रूमर्स उसने कहा भाई मैं आज सब स्लैश करता हूँ और उसने दिखा दिया लास्ट लास्ट कपल ऑफ मंथ्स कि भाई क्या कर सकता है वो So yeah, somewhere Kohli and then Gill obviously दोनों के लिए बहुत जबरदस्त होगा. I mean, if we're looking at these two being the top four, we're looking at about 1,000 runs between them, which will be incredible for India throughout the 10 matches. So it'll be nice to see that as well. भाई और एज एन अगर आरसीबी फैन मतलब मुझसे ज्यादा कौन जानता है यार गिल ने क्या किया है मतलब कोहली वाज लिटरली क्राइंग ऐसे टोपी करके इन नॉकआउट गेम्स सो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब क्या चाहते हैं हम कि नॉकआउट गेम्स में इंडिया चले सो फिंगर्स क्रॉस्ड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम शुभमन गिल एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि भाई इंडिया एक गेम ग्रुप स्टेज में 2 गेम हार जाए ताकि एटलीस्ट ये हो कि भाई हार गए टूर्नामेंट एक दो गेम्स अब सेमीफाइनल परफॉर्म करो अच्छे से एक सेमीफाइनल है फिर 4 साल नहीं रुकना है अभी और फिर उसके बाद रोना भी नहीं है भाई कि नहीं कर पाए बॉलिंग में तो यार मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो भाई कोई ना कोई स्पिनर ही दिमाग में आता है कि फास्ट पेस बॉलर्स ठीक है हो सकता है अच्छा करें आईपीएल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि पर्पल कैप्स फास्ट बॉलर्स ही लेके जाते हैं बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि भाई कोई ना कोई एक स्पिनर ही होगा और इंडिया अगर मैं थोड़ा अनबायस्ड होके मैं कहूँगा कि भाई इंडिया का मैं टीम से मैं नहीं गेस करता क्योंकि ठीक है इंडिया के पास ऑब्वियसली एक वो होम एडवांटेज होती है अगर मुझे कोई और स्पिनर दिखता है तो वो न्यूजीलैंड में एजाज पटेल ही हैज़ अ गुड रिकॉर्ड इन इंडिया वो 10 भी लिया था उसने शायद 10 मैचेस में यस इंग्लैंड में आदिल राशिद है जो अच्छा खासा बॉलिंग कराते हैं तो वो भी एक गुड ऑप्शन है टू थिंक अबाउट एज वेल ट्राइंग टू थिंक पाकिस्तान में कोई एक आउटराइट यू नो विकेट शदाब टेकिंग स्पिनर नहीं है मुझे हाँ शादाब बहुत विकेट अच्छा लगता है बट वो ठीक है यार वो ही इज गुड एट कंस्ट्रक्टिंग द इकोनॉमी जिस दिन he's bowling well but he's never the kind of guy पाकिस्तान look at and say कि हाँ आज ये रेगुलर 3-4 विकेट देगा या 2-3 विकेट देगा हर गेम में तो इसलिए मैं उसको इतना कंसिडर नहीं करता उसमें तो अगर इंडिया को हटा के मैं सोचूं तो भाई यही यही कुछ नाम ऑस्ट्रेलिया है जो में मुझे कौन कौन ऑस्ट्रेलिया है में नेथन लाइन है शायद ना नहीं नहीं नेथरलैंड नेथन लाइन ओडीआई मुझे याद भी नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया में कौन है कोई स्पिनर रखे हैं इन्होंने एश्टन एगार रखा होगा इन्होंने वेस्टर्न जरूर जैम्पा एश्टन एगार है जैम्पा है जैम्पा हो सकता है यार जैम्पा है एश्टन एगार नहीं है शायद सेंटनर हो सकता है यार मतलब सेंटनर अच्छा करा लेता है वर्ल्ड कप्स में बट हाँ हाईएस्ट तो नहीं होगा हम्म मुझे तो कुलदीप यादव ही लग रहा है हाँ भाई इंडिया वही मैं कहता हूँ कि इंडिया को हटा के तो मुझे कोई दिखता नहीं इतना कोई हो सकता है हाँ भाई मे बी राशिद खान अगर अफगानिस्तान प्ले रियली वेल क्योंकि भाई हाँ गुड उनकी ग्रेट तो शाउट पूरी उनकी तो पूरी लाइनअप उस पर डिपेंड करती है राशिद खान के विकेट्स पे दूसरा भी तो है उनका वो उस पे मुजीब मुजीब हाँ मुजीब हाँ मुजीबुर रहमान शायद कहीं है हाँ हम्म, और और बांग्लादेश में शाकिब वो आई थिंक शाकिब इज गुड बट उसके वो नहीं है आई मीन उस उनके पास भी एक अच्छा बॉलर है तबरीज शमसी बट अगेन इट्स नॉट लाइक वो इमरान ताहिर जो नहीं कराता था बॉलिंग वैसी कोई इतनी मुश्किल नहीं है तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इंडिया को हटा के तो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं और इंडिया को अगर हटा दिया जाए इक्वेशन से तो मुझे फास्ट बॉलर्स के ज़्यादा चांसेस लगते हैं
बाकी सारी टीमों में से, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर ऑल काइंड ऑफ टीम्स के उसमें है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग। मैं एक सरप्राइजिंग शाउट मेरे लिए होगा उसको देखना, बोले लांगे। he's bowled really well in the Asia Cup. He was competitive, youngster है, so he's got nothing to be kind of scared of. Leg spinner, something, बट यार वो इंडिया के Indian ही condition में। अगेंस्ट कर पाया था, बाकी टीम्स के अगेंस्ट तो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। मतलब समहाउ इंडिया, पता नहीं, एजेंटा मेंडिस भी आया था तो इंडिया को ही रुला रहा था। एंड हम्म। I don't know, मुझे लगता है यार he's young, he's got good potential at least। तो अगर if अगर वो सेट हो जाता है ना सही से, एक दो पिचेस समझ आ जाती है उसको, तो वो कुछ कर सकता है। एंड वही है कि एक दो गेम्स चाहिए, अगर 2 गेम में फाइफर ले लिया, एक दो गेम में एक दो विकेट ले लिए, तो हो जाएगा भाई उसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस। बट या इंडिया को इंक्लूड कर लें तो फिर तो इंडिया के पास तो काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। अश्विन और कुलदीप से कोई ज्यादा विकेट्स लेने वाले हैं नहीं वैसे तो, इन काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स में डू बॉलर्स यू के थिंक काफी हैं। और अश्विन अगर विल पिक अप विकेट्स? मुझे मतलब लगता है जैसे करेगा। इंदौर वाला ट्रैक तो बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक था, हम्म। तो ही वाज एबल टू पिक 4 विकेट्स, बट डू यू थिंक ही विल पिक विकेट्स और ही विल बी लाइक अ रन रोकने मुझे वाला लगता है बॉलर? कर लेगा। बट इंडिया के पास ये है ना एडवांटेज कि भाई टर्निंग ट्रैक में अब उनके पास 2 विकेट टेकिंग बॉलर्स है। अक्षर पटेल मुझे कभी से विकेट टेकिंग नहीं लगता था, ठीक है एक दो ले लेता था कभी कभी, बट वो एक ही वाज गुड टू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट दैट। वो जो 6 की रन रेट से कोई टीम जा रही हो एंड देन यू ब्रिंग इन अक्षर पटेल, वो सडनली 5.55 पे रन रेट पे आ जाता था, उसमें बड़ा हेल्प होता था। बट अब वही है कि यू हैव 2 बॉलर्स यू रिलाई ऑन, कि भाई आज कुलदीप नहीं चल पा रहा, चलो अश्विन से विकेट्स लेते हैं, कुलदीप से कंस्ट्रक्ट करते हैं, या वाइस वर्सा। Agreed. तो वही वही एक एडवांटेज है इंडिया के पास है। ऑब्वियसली इट विल बी गुड टू सी। अगर पेस बॉलिंग की बात करी जाए भाई बॉलर्स में, तो मैं सोचता हूँ भाई पैट कमिंस, ऑब्वियसली ही इज गॉट गुड एक्सपीरियंस इन द आईपीएल, रिवर्स स्विंग में बहुत अच्छा है एज वेल। काफी ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंडिया में भी जनरली अच्छे ही खेलते हैं। मैंने बहुत सरप्राइजिंगली जितने भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स देखे हैं, वो इंडिया में भी काफी अच्छा ही खेल के जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक जो है बहुत Yes, स्ट्रगल करी हो, या बहुत ही खराब काइंड ऑफ 5-6 मैचेस खेले हो, कभी मेरे हिसाब से I तो think जनरली। Hazelwood will be a bigger threat हम्म। than Cummins. मतलब वो हमेशा ही हर कंडीशन में he is able to produce something. So let's see. हेजलवुड और फिर ट्रेंट बोल्ट है, और फिर ऑब्वियसली इंडियन बॉलर्स जो बुमराह, सिराज, शामी। वही है कि वही, बस इंडिया अच्छा को एक आप। बात बताओ, like if Ashwin and Kuldeep play, तो who will India drop? बुमराह, सिराज या अश्विन शमी? एंड कुलदीप, मुझे नहीं लगता अश्विन और कुलदीप दोनों साथ में खेलेंगे। या खेलना चेन्नई खिलाना में तो तो पड़ेगा खिलाना लेकिन, चाहिए यार, चेन्नई खिलाना तो स्पिनिंग पड़ेगा हाँ। कंडीशन। वही है, फिर बट 2 पेसर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि फिर आपके पास हाँ, हार्दिक पांड्या और शार्दुल के दो तो कौन होंगे दो? 20 ओवर। इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। आह, मैंने लास्ट टाइम किसके साथ था, मैं किसी और के साथ था पॉडकास्ट में, तो आदित्य वाज ऑन द पॉडकास्ट, और मैंने उससे कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है बुमराह को ड्रॉप करना चाहिए मे बी चेन्नई में या कुछ स्पिन ट्रैक्स में, क्योंकि बुमराह स्पिन ट्रैक्स में विकेट्स नहीं ले पाता। बॉलिंग अच्छी कराता, मैं नहीं कह रहा कि बॉलिंग नहीं करा पाता, स्पिन ट्रैक्स में बुमराह का थोड़ा सा एक वो जो डेंजर लेवल होता है ना बुमराह का, जो डेंजर मीटर वो खत्म हो जाता है। और सिराज और शामी भाई दोनों जबरदस्त फॉर्म में, 5-5 विकेट लिए लास्ट फ्यू गेम्स में जो कम्पिटिटिव गेम्स थे। तो आई थिंक इट्स अ गुड हेडेक फॉर सिलेक्टर्स, इट्स अ गुड हेडेक फॉर द्रविड़ टू हैव कि भाई आपके गुड। पास 15 प्लेयर्स हाँ, है जो 15 के 15 परफॉर्म कर रहे हैं। सवाल कोई ऐसा टीम में है एग्जैक्टली नहीं कि जो जो आप कह सको कि यार नहीं इसने नहीं एग्जैक्टली। अच्छा खेला। तो इट्स अ गुड हेडेक। तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा फिर? यार बुमराह का वही, मैं भी बुमराह को ही ड्रॉप करूं, बट बुमराह का क्या है ना, इफ लेट्स से रोहित एंड द्रविड़ ड्रॉप हिम तो और इंडिया हार गई, हम्म। देन तुम और जितने भी इंडिया के फैंस हैं एक ही एक्सक्यूज देंगे कि भाई तुमने बुमराह को क्यों नहीं खिलाया, रन रोकता वो। सिराज और शमी विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, बट रन नहीं रोक पाते हैं यार मौके पे। हम्म। बुमराह इज एबल टू कंट्रोल द रन्स, एंड दूसरी तरफ से आके सिराज और शमी विकेट निकालते चले जाते हैं। सो इट्स वेरी टफ कॉल है यार, मतलब शमी को ड्रॉप करना इज सच अनफेयर टू शमी। मतलब इंडिया के अलावा कोई और टीम होती, बाकी 9 टीम्स में शमी वुड उससे खेल रहा होता तो श्योरली स्टार्ट। सो आई डोंट नो मैन, इट्स सो टफ, तभी मैंने तुमसे पूछा। इफ आई डोंट नो, आई वुड ड्रॉप अश्विन आई थिंक। मतलब तीनों को, हम्म। आई डोंट नो, मतलब तीनों में इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना यार, कि मतलब अगर मैं किन दो को पिक करूं जो क्लिक कर जाएं। एंड जितना प्रेशर होता है इंडियन फैंस का कि अगर आपने जो सेलेक्ट किए वो चले नहीं, तो हम ही होंगे जो चिल्लाएंगे कि क्यों नहीं खिलाया था उसको। सो वही आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। जनरली
It's a good headache. It's a really good headache for India. वही अब आई थिंक कंडीशंस देख के करना पड़ेगा उनको. चेन्नई जैसी पिच में या इंदौर जैसी पिच में तो भाई आपको 2 स्पिनर्स चाहिए. यू नीड 20 ओवर्स ऑफ गुड स्पिन. प्लस जडेजा भी है जो आपको 30 ओवर्स का ऑफर दे देता है. तो माय बिलीफ है कि पहली बात तो मुझे लगता है कुलदीप अश्विन दोनों साथ में खेलेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास जडेजा तो गिवन है टीम में. तो आपके पास 10 ओवर उसके हैं, प्लस आप कुलदीप के 10 ले लो, तो फिर आपको मिल जाएंगे 3 पेस बॉलर के ऑप्शन. अगेन चेन्नई में मैं अश्विन को भी लेता, कुलदीप को लेता, तीनों को लेता. मैं तो वही कहता 30 ओवर मेरे पास स्पिन होने चाहिए, और फिर मेरे पास ऑप्शन है बाकी 40 ओवर. पेस में तो पांड्या भी ऑप्शन है ना. एग्जैक्टली. और तो फिर अगर चेन्नई शार्दुल तो में आप रखोगे, शार्दुल के बिना तो इंडिया फील्ड करेगी नहीं भाई, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग को नंबर 8 तक बैट्समैन चाहिए. तो शार्दुल को जब आप रखोगे, या तो हो सकता है शार्दुल को ड्रॉप नहीं, करो. आई शार्दुल वुड. नहीं होगा ना, जगह कहाँ बची. आई थिंक यू कैन ओनली कीप 5 हम्म. इंक्लूडिंग जडेजा. तो हाँ, तो शार्दुल मैं तो मैं पिक्चर में ही है शार्दुल वो. और मैं शार्दुल और अश्विन को रोटेट करूँ. अगर अश्विन खेला शार्दुल नहीं खेला, और शार्दुल खेला तो अश्विन नहीं खेला, बट ऐसा यू हैव करना टू चाहिए. स्टिल पिक 2 आउट ऑफ द 3 पेसर्स, क्योंकि हाँ. पेसर्स दो ही होंगे. अगर कुलदीप खेलेगा तो पेसर्स दो ही होंगे, अदर देखो देन मुझे पैसे नहीं मिल हार्दिक. रहे हैं कोई सिलेक्शन टीम में करने का, तो भाई मैं ड्राविड पे छोड़ता हूँ ये बात. बहुत है, ठीक है. मैं यहाँ पे बैठ के अपनी प्रोडिक्शन देता हूँ. जीतेंगे तो मैं प्रेस करूंगा, हारेंगे तो मैं भाई गलतियां जिसको निकालूंगा. नहीं खिलाया बस. उसको बोल देंगे कि भाई इसको नहीं खिलाया इसलिए एग्जैक्टली. हार एग्जैक्टली. गए. पहले से ही प्लान है भाई, स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है मैंने अपनी अगले पॉडकास्ट की. बस वही है. ऑलराउंडर्स यार, ऑलराउंडर तो मैं भाई इंग्लैंड का ही बोलूंगा. बेन स्टोक्स मेरे हिसाब से वो बंदा किसी भी कंडीशन में कभी भी कुछ भी कर सकता है. उसको एक्सप्लोसिव है. उसको एक इनिंग्स चाहिए, 2 इनिंग्स चाहिए अपने अपना वर्थ दिखाने की. एब्सोल्युटली. हैरी, नॉट हैरी ब्रुक्स, इंडिया से मुझे लगता है कोई प्रोमिनेंट इतना परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा जितना आई थिंक बाकी सब टीम से दे पाएंगे. मे बी लुकिंग एट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई गेस दे हैव बेटर काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स. शाकिब अल हसन बीइंग वन ऑफ देम फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी है, इंडियन कंडीशंस में अच्छी होगी. ही इज अ गुड बैटर एज वेल. फॉर्म में एशिया कप में 1-2 अच्छे गेम्स खेले. डू यू थिंक मुझे मैक्सवेल कैन बी वन? मैक्सवेल इज, भाई उसका तो बिकॉज इंडिया में है, सो. वो तो कुछ भी कर सकता है. एंड हु नोज जो रूट एज वेल. वो एक हम्म. टेस्ट में उसने आके 5 विकेट हॉल ले लिया था, सो दे नहीं माइट मेरे हिसाब आस्क से आई थिंक, जो रूट टू मेरे बोल. इफ आई हैड टू गो फॉर समवन, भाई बेन स्टोक्स मेरे लिए. तो भाई ही इज अ बिग हिटर, इंडियन कंडीशंस उसको पता है कैसे करनी है हैंडल. और उसके पास जो गेम सेंस है ना, वो आई थिंक बहुत से ऑलराउंडर्स के पास नहीं है. उसको पता है कि कब मुझे वो 5 रन ऑफ 10 बॉल्स खेलना है, और मुझे कब 25 रन ऑफ 5 बॉल्स खेलने वाला हिसाब है. उसको बहुत अच्छे से आइडिया है. सो इफ ही गेट्स हिज फॉर्म इन टच एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, वो बहुत कुछ कर सकता है इंग्लैंड के लिए. मिचेल मार्श, आई एम ट्राइंग टू थिंक, उसके 2-3 अच्छे गेम्स गए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. मिचेल मार्च का यार बैटिंग का ही है, अगर बैटिंग क्लिक कर जाएगी तो ही कैन बी इन हम्म. दैट जोन एज वेल. बॉलिंग में तो ऑब्वियसली इतना है नहीं, अनयूज्ड कहूंगा मैं बॉलिंग में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शंस इतने हैं कि वो बहुत है. कैम यू ग्रीन. डोंट यू डोंट काइंड ऑफ. हाँ, कैम ग्रीन है, स्टोइनिस है, फिर आपके पास भाई आउटराइट 2-3 बॉलर. स्टोइनिस भी है, हाँ. स्टोइनिस है, एग्जैक्टली. जैम्पा, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, बहुत मिडिल टीम ऑलराउंडर है यार सब. ऑस्ट्रेलिया के पास, बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने मतलब रखे हैं 1, 2, 3, 4, 4 ऑलराउंडर्स रखे हैं. माई पिक और वुड बी बिटवीन स्टोक्स एंड पांड्या. आई थिंक पांड्या कैन बी गुड. पांड्या का मुझे लगता है बॉलिंग नहीं चल पाएगी. मे बी बैटिंग वो कर पाएगा, बॉलिंग आई थिंक इन कंडीशंस में नहीं चल पाएगी. जबकि ही इज जनरली रियली गुड. अहमदाबाद के वो जो सीरीज थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, ही प्लेड रियली वेल इन दैट. वो जो शॉर्ट बॉल एक इंग्लैंड को बहुत इशू कर रहा था, वो एक काइंड ऑफ एक एरिया है पांड्या का, विच इज ऑलवेज बिन दैट एरिया वेयर अ लॉट ऑफ टीम्स हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट. सो ही इज डन जनरली वेल, बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इस वर्ल्ड कप वो उसकी बॉलिंग इतनी क्लिक कर पाएगी. एंड आई नो शार्दुल को भी एक कंसिडरेशन में रख सकता हूँ, बट मुझे आउटराइट लगता है कि भाई स्टोक्स का ये वर्ल्ड कप है इन टर्म्स ऑफ शार्दुल नहीं, वो ऑलराउंडर्स. बैटिंग नहीं कर पाता है हम्म. उतनी अच्छी. मुझे लगता है भाई अगर कोई कर पाएगा तो स्टोक्स कर पाएगा. और इसी के साथ भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, दिस इज गोना बी अ डिफिकल्ट वन, बिकॉज इस पे तो भाई बॉलर को भी मिल सकता है, ऑलराउंडर को भी मिल सकता है, और उसको भी मिल सकता है किसी किसी बैटर को. मेरे लिए तो ऑब्वियसली विनिंग टीम से ही होगा, जो भी होगा विनिंग टीम से ही होगा. अगर इंडिया का देखा जाए तो भाई उनके पास बहुत सारे नाम हैं. एंड आई थिंक जनरली इंडिया में whoever wins the player of the tournament is usually an all-rounder, या someone who's a prominent bowler, क्योंकि bowling performances are tougher to
give or someone who can give regular tough performances. भाई मुझे अगर पिक करना होगा तो one of the Indian bowlers maybe if we win the World Cup. इंग्लैंड से तो कोई बैटर ही होगा, मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर में से कोई. ऑस्ट्रेलिया में से तो भाई कोई भी हो सकता है, साले सभी 11 के 11 ही जबरदस्त प्लेयर है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग. अग्रीड. तो ये वाला थोड़ा टफ है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पिक करना थोड़ा टफ है मेरे लिए. माई वुड बी गिल और कोहली. आई विल प्ले सेफ. मुझे लग रहा है 700-800 रन उन दोनों में से कोई तो मारेगा एंड दे विल. हो सकता है. 700-800 शायद ज्यादा बोल दिया, बट 600 तो हाँ, मुझे मारेंगे. मुझे कंबाइंड दोनों 1000 तो बना ही लेंगे, क्योंकि 500 500 हाँ तो हो ही सकता हाँ है. 500 इज व्हाट 50 का एवरेज हो सकता है. हाँ दैट्स कंप्लीटली हाँ. पॉसिबल. सो मुझे लग रहा है कि गिल या कोहली में से कोई 4 या 5 सेंचुरी मारेगा एंड दे माइट एंड अप विनिंग us the World Cup and taking the player of the tournament. I'll play safe because bowling side, it'll be a too risky prediction to say कि भाई कुलदीप को शायद मिल जाए मैन ऑफ द टूर्नामेंट. बट ऑलराउंडर में तो पांड्या, आई डोंट नो, इतना अच्छा परफॉर्मेंस युवराज इतना तो नहीं दे सकता है वो तो. आई विल गो फॉर गिल और कोहली. सेफ बेट तो वही होगी भाई, किसी बैट्समैन को दो, बिकॉज मुझे मोस्टली सीरीज में बैट्समैन ही को मिलता है. गिल इज अ वेरी गुड शॉट. मैं पता नहीं क्यों बार बार गिल को भूल जाता हूँ हर एक कॉन्वर्सेशन में. मुझे लगता है आई डोंट नो व्हाई, भाई लाइक इतनी इट तारीफ कीप्स मैंने कमिंग गिल की कर दी ऑन. है, जिंक्स ना हो जाए यार. भाई मुझे मत पकड़ना, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो गिल का नाम भी नहीं लिया. मैंने लिया. मैं मुझे दूर रखो से. नहीं यार, कोहली और गिल, हाँ ऑब्वियसली टू नेम्स आर देयर गोना बी बिग नेम्स एज वेल. भाई फाइनली वर्ल्ड कप विनर कौन होगा? एंड मैं पहले बोल देता हूँ भाई, इंडिया तो ऑब्वियसली कंटेंशन होगी. लेट्स मेक दिस इंटरेस्टिंग एंड से कि इंडिया के अलावा, क्योंकि हम लोग का दोनों का एक बायस तो जरूर रहेगा इंडिया के लिए. तो इंडिया के अलावा अगर किसी को पिक करना हो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो वो कौन होगा? मैं जाऊं पहले. आप बताओ जैसा. इंग्लैंड. कुछ आई डोंट नो, बिकॉज मेरा तो वही था कि मैंने टॉप 4 से भी उनको थोड़ा बाहर रखा हुआ था बिकॉज हाँ ऑफ हाँ देयर आई देयर नो लैक ऑफ या. बॉलिंग. मेरा अगर सेकंड नेम था तो पाकिस्तान था. और मैंने इसीलिए कहा था कि मैं सरप्राइजिंग प्रेडिक्शन दूंगा. मुझे अभी भी लगता है कि ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है और उनकी टीम में प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते सही से. यार बट तुमको ये ये एक ऐसी टीम है नहीं, एक चीज तुमको जो नहीं लगता? आई लेट यू कंप्लीट माय पॉइंट, बट हम्म, जैसे एक स्मॉल चीज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के फैंस आ ही नहीं है भाई. इंडिया मतलब आ ही नहीं सकते. दे आर आई जस्ट नो. प्लेइंग अलोन. तो वैसे ही वो प्रेशर में परेशान हो जाते हैं. अभी मान लो इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है, सब इंडियंस भरे हुए हैं स्टेडियम में. मतलब इससे पहले कोई भी पाकिस्तान इंडिया के मैच होते थे, एटलीस्ट 70-30 या 60-40 पाकिस्तान के कुछ हम्म, फैंस तो अल्लाह मचाते थे. बट पाकिस्तान का एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई उनके फैंस है ही नहीं. हाँ ऑब्वियसली इफेक्ट तो पड़ता है, और स्पेशली इन स्टेडियम लाइक अहमदाबाद जहाँ पे आपके पास 135,000 इंडियन फैंस हो जो लिटरली आपकी हर मूव देख रहे हो. वो एक हाँ. बहुत बड़ा इफेक्ट है. पर मुझे लगता है ये टीम, अगर ये टीम नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप, तो फिर पाकिस्तान को भी बहुत काम करना है वर्ल्ड कप या कोई भी ट्रॉफी जीतने के लिए. बिकॉज ये टीम एक बहुत बैलेंस टीम है. अग्री. स्पिनर्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, आपके पास फिनिशर्स की थोड़ी कमी है, पर वो भी क्यों है? क्योंकि आपके प्लेयर्स कॉन्फिडेंट नहीं है. इफ्तिखार, शादाब, सलमान आगा टू अ सर्टेन पॉइंट, भाई ये तीनों बहुत ज़बरदस्त फिनिशर्स हैं पाकिस्तान के लिए. भाई ये कि बस पीएसएल में अच्छा खेलते हैं क्योंकि प्रेशर कम होता है, पाकिस्तान में आके थोड़ा स्ट्रगल कर जाते हैं. वही है बस, वही एक वीक पॉइंट है. पेस बॉलिंग बहुत यंग है. इट्स स्टिल काइंड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द कंडीशंस. बट जो उनके पास कोचेस अवेलेबल है, मोर्ने वोकल के बेहतर आपके पास फास्ट बॉलिंग कोच मिल नहीं सकता आपको क्रिकेट में अभी आजकल. तो समवेयर आई थिंक अगर पाकिस्तान हारेगी ये वर्ल्ड कप या दे डू रियली बैड दिस वर्ल्ड कप, इज दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम. बिकॉज लास्ट 4 years अगर प्रेपरेशन देखी जाए तो पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त रही है. एंड देव ऑलवेज हैड एन अपवर्ड ग्राफ इन जनरल. ऑब्वियसली एक दो परफॉर्मेंसेज आपकी होती हैं जो आप काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं उनसे. एट द सेम टाइम यू लुक एट एंड यू से कि भाई ये टीम एक ऐसी थी जिसने 4 साल पहले से प्रोसेस शुरू किया और वो प्रोसेस अब जाकर दिख रहा है. और एक दो इंजरीज भी हुई हैं, बट एट द सेम टाइम देव गॉट द कैपेबिलिटी. एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को मैं रूल आउट नहीं कर सकता इस कॉन्वर्जेशन से. बहुत ही बैलेंस टीम, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम लेड बाय यंग कैप्टन पैट कमिंस. और ओपनर्स की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ दिस टीम हैज प्लेड रेगुलर क्रिकेट इन इंडिया, वेदर इट्स द आईपीएल, वेदर इट्स the bilateral series right before this World Cup as well as a few before this as well. तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को तो भाई आप कभी राइट आउट नहीं कर सकते इंडिया से. तो अगर मुझे इंडिया के अलावा किसी और को प्रेडिक्ट करना होगा तो भाई पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए बनते हैं दो दो काइंड ऑफ ऑप्शंस. बाकी सारी टीम मे बी एक दो अपसेट्स कॉज करें, एज वी मेंशन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका,
Netherlands, but with that'll just add to the spice of the group stages. But towards the end, वही भाई 4 teams हैं जो compete करती आई हैं last maybe 10 years, वही 4 teams 5 teams खेलेंगे आज भी. साउथ अफ्रीका हो सकता है कुछ कर सके, टॉप 4 में मे भी आ सके, बट इतनी स्ट्रांग नहीं है जो मेरे लिए जो वर्ल्ड कप जीते. तो इंडिया के अलावा आई थिंक पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए. लास्ट वर्ल्ड कप में जो T20 था, ही प्रिडिक्टेड इंग्लैंड, एवरीवन वाज राइटिंग ऑफ देम ऑफ एंड दे वन. सो अगेन आई एम सेइंग इंग्लैंड, लेट्स सी. मतलब आई एम नॉट सेइंग इंग्लैंड, आई एम सेइंग इंडिया, बट सिंस सुन द लो क्वेश्चन वाज अदर देन सुन इंडिया. लो. तो इंडिया स्लैशिंग आई, मतलब इंडिया यार, इंडिया. बिकॉज आप देखो ना, ऑब्वियसली 2011 इंडिया, 2015 ऑस्ट्रेलिया, 2019 इंग्लैंड, मतलब होम टीम, राइट? 2023 should be India because home team. एग्जैक्टली. So Exactly, it'll be a good one as well. And in other news, जो World Cup related है, but not this World Cup related, next year का World Cup 2024 T20 World Cup, which has been scheduled in the United States of America. That will be an interesting tournament. Imagine New York में आप बैठे हो और आप इंडिया पाकिस्तान के मैच देख रहे हो, which is going to be a good kind of thing to see as well, which will be interesting. And just before we end the podcast, let me just quickly update everyone with Australia's score, because I think Australia ने पहले ओवर में 3 विकेट ले लिए थे या 2 विकेट. तो oh, 37 for 4 नेदरलैंड्स. आई थिंक ये मैच तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई जल्दी ख़त्म करो, घर चलते हैं, रिलैक्स करते हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे एक और वार्म अप गेम खेल ये के. स्टार्क ने हैट्रिक लिए क्या? नहीं, आई जीरो थिंक वन जीरो वन जीरो वन, तीन तीन बंदे. दो ही विकेट लिए पहले ही ओवर में शायद. अच्छा, बट 3 uh, बंदे हैं 0 1. नहीं नहीं, हाँ हो सकता है भी, नहीं नहीं, कोई हैट्रिक, भरोसा नहीं. हाँ हो, पता नहीं, मे भी हो गई वो आई हो थिंक दूसरे नेक्स्ट ओवर ओवर में में. ली होगी या हाँ कुछ होगा, हाँ. समथिंग नेक्स्ट ओवर में ले ली होगी या कुछ ऐसी करके. एनीवेज, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर दिस पॉडकास्ट. बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस हैं जो आई थिंक मैं अपने आप को ही मार रहा हूँ बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप से, कि पाकिस्तान को प्रिडिक्ट किया था वर्ल्ड कप जीतने के लिए. लेट्स सी कैसा जाता है, कौन कौन क्या करता है, क्या होता है. बट इट विल बी अ फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट एंड इट विल बी ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप एवर काइंड ऑफ सिचुएशन. यू गॉट सच ग्रेट टैलेंट्स, एवरीवन इन देयर प्राइम. जो रूट फैब 5 जिसकी हम लोग हमेशा से बात करते हैं, उनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा मोस्ट लाइकली. डेविड वार्नर भी है उस कॉन्वर्जेशन में, एंड देन यू गॉट अ लॉट ऑफ बॉलर्स एज वेल जो कि probably playing their last kind of World Cup. So it'll be India में cricket is a festival, and it'll be a festival that everyone's going to remember for a while. If it's anything as close to I think the 2019 World Cup जो कि बहुत ज़बरदस्त गया था towards the end as well, final में, it'll be an interesting World Cup to watch, and it'll be great for ODI cricket as well, because this could be the final World Cup. अगर इंडिया जीता, जैसे जैसे न्यूज़ चैनल्स प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई अगर इंडिया जीता वर्ल्ड कप, लेट्स सैक ऑफ ओडीआई क्रिकेट, लेट्स फिनिश इट ऑफ एंड कॉल इट अ डे. और अगर इंडिया नहीं जीतता तो फिर कंटिन्यू करते हैं ओडीआई क्रिकेट until India wins. So anyways, Yash, thank you for the conversation. I'll hold your predictions in my book over here, and make sure to remind you by the end of this World Cup and say कि भाई ये कहा या था, आई but नहीं. होप यू मेक अ हाँ. लाइक रिएक्शन वीडियो एंड वो अच्छा निकले. एम्बैरेसिंग ना हो जाए. और मैंने तो सेफ ही हाँ. खेला है, सो आई थिंक उतना एग्जैक्टली. एम्बैरेसिंग मेरे लिए तो नहीं एग्जैक्टली, मैं होगा. वेट कर रहा था यार, कुछ तो एक कोई ड्रामा वाला एक कैटेगरी मिले जिसमें मैं कह सकूं यार ये कैसे कह दिया. बट नहीं, बड़ा ही सेफ खेला दोनों ने. आई थिंक जनरली हम लोगों ने दोनों ने सेफ बड़ा खेला. एनीवेज गाइस, hope you guys enjoyed the podcast. Make sure you leave a like rating on this podcast. Make sure you subscribe. Follow all of us on social media for the latest cricket news. World Cup की daily reels आएंगी, daily updates आएंगी, as many posts as I can do. I'm kind of managing everything on my own, so I'll make sure that I can do as much as I can throughout the World Cup. Um, and at the same time, thank you for all the support over the last few months on this channel. It's been incredible. You know, we've touched like almost like 6,000-7,000 views in just 10-15 days on the podcast itself. और फिर बाकी सारी videos में भी ज़बरदस्त चल रहा है. So thank you guys for the support. Can keep it going. Make sure you subscribe. Make sure you leave a like rating. Add us to your playlist to help us out as well. And we'll see you guys next time. Until then, stay safe.